Can you remember what we were doing on 10th March 2015? No, actually none of us can. So how can we know about our great rulers, monuments, the early mans, their way of living, their occupations and all? ऐसा तो नहीं है कि किसी ने हमें स्टोरी सुना दिया और हम उसे सही मान ले। कुछ तो प्रूफ या विटनेस होना पड़ेगा, वरना स्टोरी तो हम और आप भी सुना सकते हैं। Therefore, historians and archaeologists come into existence. Archaeologists are the person who studies human history and prehistory through the excavation of site and the analysis of objects, stones, bricks, weapons, tools, and etc. Historians are the scholars who study the past from the findings from manuscripts, inscriptions, and archaeology. तो अब इन सब डिटेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए तो डेट फॉर्मेट होनी पड़ेगी कि कब के क्या कैसे हुआ था। सो हाउ डू वी कैलकुलेट डेट्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू प्रेजेंट डेज। एक एग्जांपल लेते हैं। कलिंगा वार वाज फॉट इन द ईयर 261 BC बिटवीन द मौर्यन एम्पायर एंड द कलिंगा स्टेट। सो हम उस तो ये 261 BCE का कैसे पता चलता है कि ये 261 BCE में ये वार हुआ था। तो उसके लिए हम ये डेट फॉर्मेट यूज़ करते हैं। उसके लिए हम रेफरेंस लेते हैं क्राइस्ट के जन्म को। एंड 0 इज़ व्हेन द क्राइस्ट वाज बॉर्न। और 0 के बाद का जो टाइम है या टाइम पीरियड है उसे हम कहते हैं AD, एनो डोमिनी। और क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो भी टाइम पीरियड है, अर्ली मैन से लेकर कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो सब हम उन्हें कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। और इंडिया में जो हम फॉलो करते हैं वो है CE एंड BC। AD को रिप्लेस करते हैं C, दैट इज़ कॉमन एरा। 0 के बाद का जो टाइम पीरियड वो कॉमन एरा, और 0 से पहले का टाइम पीरियड वो BC, बिफोर कॉमन एरा। वेयर डिड द पीपल लिव। हज़ारों लाखों साल पहले आज की जैसे सिटीज़ नहीं हुआ करती थी। आज जैसे हमारे घरों में पानी आता है, उस टाइम तक इन्वेंशंस नहीं हुए थे। तो इन दोज डेज पीपल यूज टू लिव नियर द रिवर्स। तो जितने भी हम देखेंगे एंशिएंट सिटीज़, विलेज टाउन्स है, वो ऑलमोस्ट सारे ही नदी के किनारे या रिवर्स प्लेन पे थे। So these are the ancient cities: Narmada, Suleiman and Kirtar hills, Garo hills, Vindhyas, Indus and its tributaries, Ganga and its tributaries. People lived along the bank of Narmada for several 100,000 years. लाखों साल तक वो वहाँ रहते थे। They were skill gatherers. Skill gatherers are generally the food gatherers. They used to gather food like fruits, vegetables and animals. They were skill gatherers because they knew which food to eat or which not, which can be poisonous and all. सुलेमान एंड खिरतार हिल्स की इम्पोर्टेंस ये है कि मैन एंड वुमेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट, बार्ले हियर अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। तो अब फार्मिंग हुआ करता था, तो चांसेस है कि वहाँ एनिमल्स भी होते होंगे और विलेजेस भी होंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं the people here started domesticating animals such as sheep, goat and cattle. The village development also started here. Garo Hills is situated in the northeastern India. Agriculture development also began here. The place where rice was first grown was to the north of India's. याद रखना, राइस हमें सबसे पहले यहीं पता चलता है कि ग्रो हुआ करता था। राइस का क्रॉप यहीं पे हमें पता चलता है सबसे पहले हुआ था। Indus and its tributaries. This is very important guys, because throughout our history we will learn about Indus, because यही हमारा ancient cities develop हुआ था around 4,700 years ago. Ganga and its tributaries son. 2,500 years ago cities developed on the bank of Ganga river and its tributaries son. So जैसे जैसे cities agriculture, trade and commerce develop हो रहा था, people started traveling for livelihood, sometimes to escape from natural disasters like flood and droughts, and sometimes for war, and sometimes for religious कारणों से भी जाते थे। और कुछ एडवेंचर्स के लिए जाते थे कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, आज एक नया देश खोज लेते हैं रहने के लिए। नेम ऑफ द लैंड इंडिया एंड भारत। तो कैसे हमारे देश का नाम इंडिया या फिर भारत पड़ा। India came from Indus, which is also called Sindhu in Sanskrit. Iranians and Greeks came through northwest around 2,500 years ago. As they were familiar with river Indus, so
इंडस नदी के ईस्ट का जो एरिया था उन्होंने उसे इंडिया का नाम दिया। और द नेम भारत इज मेंशन इन ऋग्वेदा विच वाज रिटन अराउंड 2500 years ago. भारत was used for people who lived to the northwest part of subcontinent. तो भारत हमें ऋग्वेद में मेंशन मिलता है और वो यूज़ होता था जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रहते थे। सो हाउ डू वी फाइंड अबाउट आवर पास्ट, तो कैसे हमें अपने पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है? थ्रू रीडिंग बुक्स रिटन एट दैट टाइम कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स विच आर जनरली हैंड रिटन। दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीव्स यानी खजूर के पत्ते और बर्च बार्क जो कि हिमालय में एक ट्री मिला करती थी। सो जाहिर सी बात है अगर सही से प्रिजर्व ना करें तो लीव्स और बार्क्स को इंसेक्ट्स खा लेंगे या ओवर द टाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट स्टिल मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। दे वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। दीज आर द एंशिएंट लैंग्वेज यूज्ड एट दैट टाइम। फिर आते हैं इंस्क्रिप्शंस। सो कुछ होते हैं जाबाज और धीट प्राणी जो पत्तों पे या फिर बार्क पे नहीं लिखा करते थे। सो दे यूज टू राइट ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज मेटल और स्टोन्स। तो वो क्या लिखते थे? पत्थरों और मेटल्स पे वो किंग्स के ऑर्डर या फिर किंग्स की सुंदरता का वर्णन या फिर उनकी वार में विक्ट्रीज, ये सब वो उन स्टोन्स एंड पत्थरों पर लिखा करते थे। सो इंस्क्रिप्शंस बस मिलने से काम कंप्लीट नहीं हो जाता है हिस्टोरियंस का। They may contain certain language and symbols which are not in practice anymore. So scholars decipher it. Decipher generally mean decode or cipher to plain text or the language we can understand. तो वो इंस्क्रिप्शंस को कुछ ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते या फिर डिकोड करते जो कि हम कॉमन पीपल समझ सकें।